क्योंकि वो प्रोसीजर है। Yeah. You are a senior pastor, nearly 25 years you are doing the Lord's पिछले work. 25 साल से आप सेवकाई कर रहे हैं और बहुत बड़े पास्टर हैं, Not a wonderful missionary. इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। So, according the rules and the Indian Christianity, the international rules, first they asking to the pastor. So, then after I will give. इस इंडियन क्रिश्चियन रूल के अनुसार पहले पास्टर जी को पूछना जरूरी है, उसके बाद ही हम अभिषेक करना है। Amen. आमीन। நான் சில questions கேட்க போறேன். मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करूँगा, அதுக்கு உண்மையா சொல்லணும். और सच्ची रीति से आप उसका जवाब दीजिए, நீங்க சொல்ற ஒவ்வொரு பதிலையும் கர்த்தர் பார்த்துட்டு இருக்கார். क्योंकि आप जो उत्तर दे रहे हैं सारे उत्तरों को परमेश्वर सुन रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Is coming? Hallelujah. Yeah. Now I am going to ask some questions to you on the basis of the word of God. परमेश्वर की वचन के अनुसार मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। Yeah. You are also educated, no problem. But anyhow, these people are understanding, so this is that. I request all of you, who is going to take the ordination to give answer for my question? जो अभिषेक लेने वाले हैं उनको मैं विनती करता हूँ कि मेरे प्रश्नों का जवाब दें। இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இந்த கேள்விக்கு. इस क्वेश्चंस के लिए मैं आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ। ஜல்தி ஜல்தி ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கணும். அதுதான் கர்த்தருக்கு பிடிக்கும். யா. Are you happy? हाँ, நல்லா கை தட்டுங்க. அவ எப்படி செய்றா? क्लैप। நான் எப்பவுமே இவளுக்காக நான் ஜெபிப்பேன். मैं इनके लिए हमेशा प्रार्थना करता हूँ। யா, நீங்க அப்படியே வந்து எடுங்க. யா. So, பாருங்க. நீங்க இப்படி வச்சிட்டீங்கன்னா அவளுக்கு இவளுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும். Have you told that Jesus Christ called you for his ministry? हिंदी. क्या आपने कहा है कि यीशु मसीह ने आपको अपनी मिनिस्ट्री के लिए बुलाया है? यीशु मसीह நான் சொல்றேன். இயேசு கிறிஸ்துவோட ஊழியத்தை செய்யறதுக்கு நீங்க வந்திருக்கீங்களா? क्या आप प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के लिए आप इधर आए हैं? எஸ். ரெண்டாவது, எந்த வகையான ஊழியம் செய்வதற்கு இயேசு கிறிஸ்து உங்களை அழைத்திருக்கிறார்? क्या आप बता सकते हैं कि यीशु मसीह ने आपको किस प्रकार की मिनिस्ट्री के लिए बुलाया है? பாஸ்டர் மினிஸ்ட்ரிக்கு கர்த்தர் உங்களை அழைத்திருக்கிறார். கால் ஃபார் தி பாஸ்டர். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? पास्टर मिनिस्ट्री के लिए प्रभु आपको बुलाए हैं। எஸ். மூன்றாவது, can you give the assurance that you will do the ministry of Jesus Christ only? क्या आप यह आश्वासन दे सकते हैं कि आप सिर्फ यीशु मसीह की ही सेवकाई करेंगे? Yes. அவங்களுக்கு தெரியும் இங்கிலீஷ். ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்ட். Do you accept the Trinity of God? क्या आप परमेश्वर की त्रिएकता को स्वीकार करते हैं? Why I asking this question? मैं एक प्रश्न क्यों पूछ रहा हूँ? Right now in the world, क्योंकि इस समय इस संसार में the against Bible, बाइबल के विरुद्ध में Jehovah Witness, यहोवा विटनेस, only Jesus, ओनली जीसस क्राइस्ट, this type of denominations now in the earth. इस प्रकार के डिनोमिनेशन जो होते हैं वो इस समय पृथ्वी पर प्रचलित है। So this type of devil institutions coming. तो इस प्रकार के जो शैतान के जो इंस्टीट्यूशन है, Yeah. हाँ, युक्तियाँ हैं वो चल रही है। I will give you 1 crore rupees. Please do refuse the Trinity. ऐसा कहते हैं कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, ये परमेश्वर की त्रिएकता को इनकार कर दीजिए। அது எப்படி தெரியுமா சாத்தான் செய்வோம் குடும்பத்துல? वो कैसा शैतान करेगा क्या आप जान सकते हैं? வைஃப் மூலியமா. वो पत्नी के द्वारा वो आएगा। इस प्रकार की चिंताधारा। The devil institutions not directly to contact you. पर शैतान की जो युक्तियाँ हैं वो डायरेक्टली आपसे बात नहीं कर सकते। They contact you your wives. वे आपकी पत्नियों के द्वारा आपसे संपर्क करती हैं। Normally the wives say, oh, living in so sophisticated life, total world I know. क्योंकि जनरली जो होती पत्नियां वो वर्ल्डली लाइफ जीती हैं। So if your wife says, no, car, bungalow, AC, oh, world tour, oh, no problem. You refuse to Trinity. Anyhow, you live in sophisticated in the earth. They're changing your mind. तो वो जो आपकी
पत्नियां होती है वो आपको तमाम प्रकार की लालसाओं से परमेश्वर की त्रियकता से भटका सकती So है। very careful. सो सावधान रहिए। Yeah. Whether you and your wife will be model in prayer to the believers of the church. क्या आप और आपकी पत्नी आपके चर्च में विश्वासियों के लिए एक मॉडल है, Role model. रोल मॉडल है, आदर्श है? Yes. Understand? Yes. हाँ। Yeah. Next. Whether you and your wife or husband will be a model in love and in faith to the believers of the church. क्या आप और आपकी पत्नी तमाम चर्च के सभी विश्वासियों के लिए प्यार और विश्वास में एक आदर्श रहेंगे? ஒரு ரோல் மாடல் ரொம்ப முக்கியம். हाँ, रोल मॉडल। स्वरूप होना हाँ। जरूरी है। என்ன ரோல் மாடல்? क्या आदर्श स्वरूप होना? இதுதான் ரோல் மாடல். यही आदर्श स्वरूप है, ऐसा पहनना। அடுத்த முறை இவனுக்கு நான் ஆர்டினேஷன் கொடுக்கிறேன். இப்பவே சொல்லிட்டு. नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊंगा इनको मैं अभिषेक करूंगा, अभी बता உண்மையா दे रहा हूँ, நான் பாஸ்டர் கிட்ட சொன்னேன். கர்த்தர் என்கிட்ட சொல்றாரு. क्योंकि परमेश्वर मेरे को बोले हैं, मैं पास्टर जी को भी ये बात बताया ஆமா, हूँ। இவன் நல்லா ஜெபிக்கிறான். ये बहुत प्रेयरफुल लड़की है। அடுத்த முறை இவ இன்னைக்கு ஒயிட் போட்டுட்டு வந்திருந்தான்னா கொடுத்திருப்பேன். अगर आज वो एक व्हाइट ड्रेस पहन के आती तो मैं आज ही दे देता, இவ மிஸ் பண்ணிட்டான். लेकिन वो मिस कर दिया। சரி பரவாயில்ல. कोई दिक्कत नहीं। அப்போ இதுதான் ஒரு ஊழியக்காரிக்கு यही ரோல் यही மாடல். जो है वो एक आदर्श स्वरूप है। ஆமா. I am not against gold. I am not against gold. गोल्ड के विरुद्ध में मैं नहीं हूँ, But the role model. लेकिन एक आदर्श होना, दूसरे विश्वासियों के लिए आदर्श स्वरूप होना। Next question. Whether you will preach and teach to the believers according to the word of the God and lead them to reach the kingdom of the God. क्या आप सभी विश्वासियों को परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रीच करेंगे और उन्हें परमेश्वर के राज के लिए लीड या अगुवाई करेंगे? Hallelujah. So, உங்க பிலீவர்ஸை நீங்க பரலோகத்துல கொண்டு போய் சேர்த்த வேண்டியது உங்க கடமை. आपके विश्वासी जो भी रहेंगे उनको परमेश्वर के राज में अगुवाई देना आपका काम है। எந்த சூழ்நிலையிலும் உங்களுடைய பெனிஃபிட்டுக்காக நீங்க அந்த வேர்டை மாத்திர கூடாது. कोई भी परिस्थिति में आप अपनी भलाई के लिए उस परमेश्वर के वचन के साथ छेड़छाड़ मत करिए। Hallelujah. हालेलुया। Next, if anybody to take read John 12:26. यूहन्ना 12:26 पढ़िए। அந்த பிள்ளை படிக்க சொல்லுங்க. आप ही पढ़िए। Yeah, speaker is there. Yeah, 12:26 John. 12 अध्याय 26 वर्ष यूहन्ना। யோகனா, anyone, loud one. कोई भी पढ़ सकते हैं। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। பாருங்க எவ்வளவு அழகா சொல்றாரு. देखिए। So, I request so Jesus told that प्रभु यीशु ये बात बताए हैं, if anyone serve me, अगर यदि कोई मेरे को फॉलो करता है, he must follow. हाँ? If anyone serve me, सर यदि कोई मेरी सेवकाई करता है, he must follow. वो मेरा अनुगमन करना है, मेरे को फॉलो करना है। நீ இயேசு கிறிஸ்து ஊழியக்காரனா இருந்தா அவரை தான் ஃபாலோ பண்ணணும். अगर आप यीशु मसीह की सेवकाई करते हैं, आप केवल यीशु मसीह को फॉलो करिए। ஆமா, நீங்க யாரோ ஒரு பெரிய போதகர் அப்படி ஃபுல் ஷூட் போட்டு வந்து அப்படி டை கட்டிட்டு ஷூ போட்டுட்டு அப்படி கார்ல வந்து இறங்குறவங்கள ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. लेकिन कोई भी व्यक्ति पास्टर बोल के शूट बूट पहन के बढ़िया कार में एसी में आते हैं, उनको देखकर आप रोल मॉडल की तरह फॉलो मत करिए, लेकिन प्रभु यीशु को फॉलो करिए। நான் 3 பேத்தை ஃபாலோ பண்றேன். मैं 3 लोगों को फॉलो करता हूँ। கிரியேட்டர் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட், सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट, जीसस क्राइस्ट, பால், पॉल மை ஃப்ரெண்ட் சாது சுந்தர் சிங். और मेरा दोस्त साधु सुंदर सिंह जी, इन 3 लोगों को मैं फॉलो करता हूँ। செலக்ஷன் எப்படி இருக்கு? देखिए मेरा कैसा मैं चूज किया हूँ, कैसा सेलेक्ट किया हूँ लोगों को। நம்ம செலக்ஷன் हमारा सिलेक्शन उस तरह होना चाहिए। நம்ம ஏதோ டிவில பேசுற பெரிய பாஸ்டர் பார்த்துட்டு நான் ஃபாலோ பண்றேன்னா மினிஸ்ட்ரி ஃபெயிலியர் ஆயிடும். कोई टीवी में प्रचार कर रहे करके उनको देखकर हम उनको फॉलो करेंगे तो हमारा मिनिस्ट्री कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। இன்னொன்னு நான் உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்றேன். और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, எந்த காரணத்தை கொண்டு டை அப்ளை பண்ணாதீங்க. कोई भी सर्कमस्टेंस में आपके बालों को डाई मत लगाइएगा। நம்ம எல்லா விதத்திலும் ரோல் மாடலா இருக்கோம். हम हर विषय में रोल मॉडल होने की जरूरत है, आदर्श स्वरूप होना जरूरी है। ரோமன்ஸ் 14:18. रोमन्स 14:18। 14th chapter 18th verse. जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। பாருங்க,
இயேசு கிறிஸ்து ஊழியக்காரன் இயேசுவுக்கு பிரியமானவனா இருக்கணும். परमेश्वर का सेवक परमेश्वर को प्रिय होना चाहिए, मतलब स्वीकृत होना चाहिए, மனுஷராலும் அக்ரி பண்ணப்படணும். और साथ ही साथ लोगों के सामने भी वो स्वीकार्य होना जरूरी है। பாருங்க, இவர் அக்ரி பண்ணப்பட்டிருக்கார் as a pastor. एक परमेश्वर का दास होने के नाते आपको अभिषेक देने के लिए वो सहमत हैं। அவர் அக்ரி பண்ணப்பட்டிருக்கார். அவர் ஒரு சர்ச் பாஸ்டர். हमारे पास्टर जी भी एक कलीसिया के पास्टर है, वो भी सहमत है इस बात को लेकर। இவங்களை கேட்டா அவர் என்ன சொல்லுவாங்க? அவர் எங்க பாஸ்டருங்க. अभी विश्वासियों को अगर कोई पूछते हैं वो कौन है, तो वो हमारा पास्टर जी हैं करके वो बोलते हैं। அவரோட ஏரியால போய் கேட்டா அவர் எங்க பாஸ்டர். हाँ, अगर पास्टर जी के चर्च में जाके हम पूछेंगे वो कौन है, तो वो हमारा पास्टर है करके बताते हैं। இயேசு சொல்லணும் இவன் என்னோட ஊழியக்காரன். उसी समय यीशु मसीह भी बोलना चाहिए ये मेरा सेवक है। Same time மனுஷனும் சொல்லணும். उसी समय मनुष्य भी बोलना चाहिए वो हमारा पास्टर है। அதுதான் காலிங். वही बुलाहट है। எடுத்து படியுங்க. John 15:5. John. यूहन्ना 15 अध्याय 5वां पद। Yes. அந்த புள்ள இங்க வந்து உட்காரணும். मैं दाख सिस्टर लेता आप इधर बैठ जाइएगा, இந்த பேக்லாம் தூக்கி போட்டு இங்க உட்காரு. इधर आ जाइए, सामने आ जाइए। 15:5. मैं दाख लेता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। பாருங்க, நீங்க வந்து ஊழியக்கார வந்து ஒரு திராட்சை செடி. एक सेवक क्या होते हैं, वो द्राक्षलता होते हैं, அந்த கொடிகள் வந்து உங்க விசுவாசி. और शाखा जो है वो आपके विश्वासी हैं। நீங்க நல்ல ஃப்ரூட்ஸ் கொடுக்கணும். आपको क्या ஃப்ரூட்ஸ் आपको फलना है, ஃப்ரூட்ஸ் கொடுக்கணும். आपको फलना है। ஃப்ரூட்ஸ்னா என்ன? ஆப்பிள் ஆரஞ்சு பிலீவர்ஸ் கொடுக்கணும். फल मतलब एप्पल ऑरेंज अब दो करके मैं नहीं बोल रहा हूँ। உங்களுடைய அந்த ஜீவியம். वो क्या है, आपका जीवन शैली जो है वही इम्पोर्टेंट है। ரெவலேஷன் 2:4. प्रकाशन ரெவலேஷன் 2:4. रेवलेशन 2:4। அவளுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும், இங்கிலீஷ்ல சொல்லுங்க. இன்னும் நீங்க ஹிந்தியில சொல்ல வேண்டாம். ரெவலேஷன் 2:4. पर तुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। பாருங்க, கர்த்தர் எவ்வளவு அழகா சொல்றாரு பாருங்க. நாமோ ஊழியத்துக்கு வந்தப்போ நல்ல ஃபயரா இருப்போம். देखिए इधर कितने अच्छी रीति से परमेश्वर बता रहे हैं, जब हम सेवा के लिए प्रारंभ करते हैं तब पूरा फायर और उज्जीव मतलब एक जलस रहती है हमारे जीवन में, போக 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 குறைஞ்சிடக்கூடாது. लेकिन जाते 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 वो कम होना नहीं है। ஊழியத்துக்கு வந்தப்ப என்ன அபிஷேகத்தோட இருந்தோமோ அதை மரிக்கிற வரைக்கும் இருக்கணும். जो परमेश्वर की सेवकाई जब प्रारंभ करते हैं, जो अभिषेक उस समय है वही अभिषेक आखिरी सांस तक रहना है। என்னுடைய 50 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன். मेरे 50 साल के अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ, உங்க मिनिस्ट्री सक्सेस ஆகணும்னா உங்க வைஃப் ஜெபிக்கணும், டெடிகேஷன். आपके अगर मिनिस्ट्री सक्सेस होना है तो आपकी पत्नियां प्रार्थना करना आवश्यक है। हालेलुया। All of you agreed that you are called by our Jesus Christ to do his ministry. ये बात में आप सभी सहमत हैं कि आप परमेश्वर यीशु मसीह की सेवकाई करने के लिए बुलाए गए हैं। Jesus is calling for the ministry அப்படின்னு நீங்க நம்புறீங்களா? परमेश्वर यीशु मसीह आपको उनकी सेवकाई के लिए बुलाए हैं, यह बात आप विश्वास करते हैं? அதை எப்படி அக்ரி பண்ணோம்னா ஃபாதர் சன் இந்த ஹோலி ஸ்பிரிட் ஐ அம் அக்ரி. उसको हम कैसे सहमत बोलते हैं? पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं अंगीकार करता हूँ, ऐसा हमको बोलना है। இப்போ பாஸ்டர்ஸ் வந்து உங்களை பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி நாமத்தில் ஆசீர்வதிப்பாங்க. अभी परमेश्वर के दास पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे आपको अभिषेक करेंगे, இங்க இருந்தே ஆசீர்வதிப்பாங்க. यही से आशीष देंगे। பாஸ்டர் கம் அவர்கிட்ட ஹிந்தியில சொல்லுங்க. இங்க இருந்து இவங்க மூணு பேத்தையும் ஆசீர்வதிக்கணும். यहाँ से मतलब उन तीनों को आप ब्लेसिंग्स दीजिए। பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி நாமத்தில் இந்த ஊழியக்காரங்களை நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன். அவங்க ஊழியம் ஆசீர்வாதமா இருக்கணும்னு சொல்லுங்க. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इन लोगों की सेवकाई को मैं आशीष करता हूँ। पिता उनको आशीष दे करके आप आशीष दीजिए। எல்லாரும் கையை உயர்த்தி அமைதியா அவங்க ஊழியம் ஆசீர்வதிக்கப்படணும்னு சொல்லுங்க. हम सब हाथ उठाएंगे और उनका सेवकाई आशीषित हो, मन में प्रार्थना करेंगे। घुटने टेक लीजिए, घुटने टेको तीनों। கை வைக்க வேண்டாம், கை வைக்க வேண்டாம். Don't touch them. प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, इन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम अभिषेक करते प्रभु जी, और जिस सेवकाई के लिए बुलाया है
बाइबल के अंदर में लिखा है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसी के योग्य चाल चलो प्रभु जी। आपकी इच्छा पूरी होने पाए। धन्यवाद, आपके नाम को महिमा मिले। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से इन जो परमेश्वर की दास के रूप में बनने वालों को आशीर्वाद मिलने पाए। आमीन। आमीन। Hallelujah. This is the, please stand. खड़े हो जाइए। This is the declaration. ये घोषणा है। Do you know English? You will know. Mike. Yeah. Please show. Come please. Pastor, you will show. Yeah. Declaration. Loud voice. Clear. Hallelujah. I am Sunny Jambulkar. The name in Jesus is my name is Shalom. Today declare. Slowly, Yes. please. This whole world is going. Myself, my name is Sunny Jambulkar, and in Jesus' name, my name is Shalom. Today, today declare that I was called by Jesus to do His ministry. I will obey to each and every word of the Holy Bible. I will maintain the holiness in God. I will be truthful to God for everything. I will maintain the faith in Jesus at any circumstance. I assure that I will be ready at any time to pray for others. Next reading, Veda, brother Veda, in few minutes in Pastor Veda. Yeah. You tell me, they try. मैं बोल के आपका नाम बोलूँ, उसके बाद Yeah. today declare that I was called. मैं आपका नाम सिर्फ ये घोषित करता हूँ कि Loud voice. मैं वेदराम वर्मा आज ये घोषणा करता हूँ आज यह घोषणा करता हूँ कि मैं यीशु यीशु मसीह मसीह के लिए बुलाया गया हूँ। यीशु मसीह की सेवकाई के लिए बुलाया गया हूँ। मैं बाइबल की हर एक वचन को बाइबल की हर एक वचन को मानूंगा। मैं परमेश्वर में पवित्रता को बनाए रखूंगा। मैं परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहूंगा। मैं यीशु में मेरे विश्वास को हर परिस्थिति में कायम रखूंगा। मैं ये अजूर करता हूँ किसी भी समय में दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार मैं तैयार रहूंगा। Next, brother Lokesh. Few minutes. Hindi translation. Hindi. मैं लोकेश आज ये घोषणा करता हूँ कि मैं परमेश्वर यीशु मसीह की सेवकाई के लिए बुलाया गया हूँ। मैं परमेश्वर यीशु मसीह की सेवकाई के लिए बुलाया गया हूँ। मैं पवित्र बाइबल के हर एक वचनों को मानूंगा। मैं पवित्र बाइबल के हर एक वचनों को मानूंगा। परमेश्वर में अपनी पवित्रता को बनाए रखूंगा। परमेश्वर में अपनी पवित्रताई को बनाए रखूंगा। मैं परमेश्वर के प्रति विश्वास से योग्य रहूंगा। मैं परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहूंगा। यीशु मसीह में मेरे विश्वास को हर हालत में कायम रखूंगा। यीशु मसीह में मैं हर हालत में अपने विश्वास को कायम रखूंगा। और मैं ये भरोसा देता हूँ कि हर समय में दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार रहूंगा। हरदम तैयार रहूंगा।